રસ્તામાં હજુ પણ મહાનુભાવો ઊભા છે. મિત્રો, આપણા વડીલો આપ પોતાનું સ્થાન લઈ લો. આપણા હોદ્દેદારો, મિત્રો અને આમંત્રિત મહેમાનો સ્થાન લેજો. નગરપાલિકાના સભ્યો માટે આગળ થોડી જગ્યા રહેવા દેજો. આગળ પણ ખાલી હોય. નગરપાલિકાના જે સભ્ય મિત્રો છે, ભાઈ શ્રી રસિકભાઈ, क्या जा रहे हो? अनाउंस करो गुजरात में थयेला विकास कार्यों की झलक लईने आई गई है। विपुल भाई तथा मंत्री मंचस्थ सर्वे मेहमान श्रीओनु आजना शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिवादन करिए श्री जितेन्द्र सिंह जी અને પ્રદેશના મંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ ઠાકરશ્રી એ યાત્રા લઈને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. હવે આપણે આવેલ મહેમાનશ્રીઓનું આપણી પરંપરા મુજબ પુષ્પગુચ્છ તલવાર સાફાથી સ્વાગત કરીશું. केंद्रीय मंत्री श्री जितेन्द्र जी નું સ્વાગત કરવા માટે આપણા મત વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ સાહેબને વિનંતી કરીશું કે તેઓ શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીનું તલવાર અને બુક્કેથી તાલીઓના ગળગળાથી આપણે સૌ સ્વાગત કરીશું. ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की. तालुका संगठन अजबसिंह, त्यारबाद महेमदाबाद शहर संगठन प्रमुख निलेश भाई तथा તેમની ટીમને વિનંતી કરીશું કે તેઓ શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રી ખેડા તાલુકા સંગઠન ટીમને વિનંતી કે તેઓ શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરશે. भारत माता की जिला पंचायत सभ्यश्रीओने विनंती के तेओ મંતવ્ય સાહેબ છે.
જિલ્લા પંચાયત સદસ્યને વિનંતી કે તેઓ શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. રસિકભાઈ ખાતરજ ગ્રામ પંચાયતની ટીમને વિનંતી કે તેઓ શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. ફટાફટ મંચ ઉપર આવી દરેકે મહેમાનશ્રીનું સ્વાગત કરવા વિનંતી. हाँ जी 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 जा दो હાથ તનાકો अरे पेला हमने कहवा तो પાલન કરે. ઓકે ડન, ચલો. કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભીખાભાઈ તથા તેમની વિનંતી अल्लाह चाल ભારત માતા કી માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી ચૌહાણ સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભીખાભાઈ તથા તેમની ટીમને વિનંતી જેટલા દેખાય એટલા લઈ દેવસિંહ ચૌહાણ સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રમુખ શીલાબેન તથા તેમની ટીમને વિનંતી કરીશું કે તેઓ તેમનું સ્વાગત કરશે. આપણે ભારત માતાનો જયઘોષ અને તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રાખીએ. ભારત માતા કી ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી અને આપણા મત વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણ સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે એપીએમસી ચેરમેન વિનંતી કરીશું કે તેઓ તેમનું સ્વાગત કરશે. મંત્રી અમિતભાઈ ડાભીને વિનંતી. आ बाजू ले જિલ્લા પ્રમુખ ભારત માતા કી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આયોજિત આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાના આ વિશેષ પ્રસંગે સભામાં ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી, વિશેષ કાશ્મીરના કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહજી સાહેબ, આપણા સાંસદ, આપણું ગૌરવ આદરણીય દેવસિંહ ચૌહાણ સાહેબ, આપણા પ્રભારી પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી આદરણીય ગોરધનભાઈ ઝડપિયા સાહેબ, પાર્ટીના મજબૂત સુકાની દોલતસિંહજી, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ભીખાભાઈ, આદરણીય આપણા વિસ્તાર કેવા નંદકિશોર વિરેન્દ્ર હેમંદ્રસિંહ જાદવ, મંચસ્થ એવા નગરપાલિકા ડોક્ટર સાહેબ, મંત્રી સાહેબ, આપનું ફરી એકવાર વિશેષ સ્વાગત કરીએ છીએ. મિત્રો, આપ જાણો છો એમ સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સમયમાં જે વાતાવરણ બન્યું છે, આદરણીય મોદી સાહેબે જે ચીલો ચાપ્યો છે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એની પર વર્તમાન સરકાર ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબના બોલો ભારત માતા કી વંદે માતરમ માતરમ. આજના ગૌરવ યાત્રાના પ્રસંગે મહેમદાવાદની ભૂમિ પર મંચ પર બિરાજમાન ભારત સરકારના કેન્દ્રીય મંત્રી, અમારા સ્નેહી સાથી અને જેમની પાસે ખૂબ અગત્યના વિભાગ છે એવા આદરણીય શ્રી જીતેન્દ્રસિંહજી, સમગ્ર ગુજરાતની ગૌરવ યાત્રાના ઇન્ચાર્જ આપ સાહેબ હતા એવા પૂર્વ ગુજરાતના બાહોશ ગૃહમંત્રી આદરણીય ગોરધનભાઈ ઝડપિયા સાહેબ, આપણા પોતાના મહેમદાવાદના ધારાસભ્ય, ગુજરાતના કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી, ગૃહ વિકાસ, ગૃહ નિર્માણ, ગ્રામ વિકાસ વિભાગના મંત્રી અને ભાઈ શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણજી, આપણા આ યાત્રા નહીં 2002 થી ગુજરાતમાં જેટલી યાત્રા નીકળી છે એના ઇન્ચાર્જ બીજા અમિતભાઈ ઠાકર કે જેના નેતૃત્વમાં તમામ યાત્રાઓ સફળ થઈ છે એવા ભાઈ શ્રી અમિત ઠાકરજી, આપણા જિલ્લાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ, પ્રદેશના મંત્રી બેન શ્રી જાનવીબેન, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બેન શ્રી નયનાબેન, નગરપાલિકાના પ્રમુખ બેન શ્રી શીલાબેન અને આપણા મહેમદાવાદના પૂર્વ ધારાસભ્ય આદરણીય ભાઈ શ્રી ગૌતમભાઈ, મંચાસિંહ, સૌ મહાનુભાવ, કારણ કે બધાના નામ લેતો નથી. અને ગટ્ટા સાહેબના આશીર્વાદથી ગુજરાતમાં 4 ફેઝમાં ગૌરવ યાત્રા નીકળી છે અને આજની આ ગૌરવ યાત્રા મા ઉનાઈના આશીર્વાદથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉનાઈ ખાતેથી નીકળી અને આવતીકાલે ફાગવેલની ધરતી, ભાતીજી સુરવીરજીની ધરતી ઉપર
સમાપન થવાનું છે ત્યારે આ યાત્રા લગભગ મધ્ય ગુજરાતના તમામ વિધાનસભાઓમાં થઈ અને આજે મેં અમદાવાદમાં પધારી છે ત્યારે મારે લાંબી વાત કરવી નથી, આપણે મંત્રી સાહેબને સાંભળવાનું. પણ ગૌરવ યાત્રા કેમ? ગુજરાતમાં છેલ્લા 20-25 વર્ષથી ગુજરાતની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઉપર ભરોસો મૂક્યો અને એ ભરોસો કેવો ચરિતાર્થ થયો. એ ભરોસા ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો કેવી રીતે ખરી ઉતરી એની વાત સમાજ વચ્ચે લઈને આ યાત્રા નીકળી છે. ત્યારે આ યાત્રામાં તમને ગૌરવ થાય, અમને ગૌરવ થાય, અને આ દેશના પ્રત્યેક નાગરિકને ગૌરવ થાય એવી આ ગૌરવ યાત્રાની વાત છે. મારો લાંબો સમય લઈશ. ગુજરાતની સરકારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, વીજળીની વાત હોય, 108 થી શરૂ કર્યું અને વિકાસના મોડલને જોઈને 2013માં જ 2014ની લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા જાહેરાત કરી કે આ દેશમાં જો અમારી બહુમતી આવશે તો દેશમાં વડાપ્રધાનનો ચહેરો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ હશે અને દેશમાં 272 થી વધારે બહુમતી આવી અને દેશમાં ભાજપની સરકાર બની. આ ઘટના એટલા માટે યાદ કરાવું છું કે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર ઘટના બની, પણ દેશને ભરોસો હતો કે સતત 13 વર્ષ સુધી ગુજરાતનો વિકાસ કરનાર, ગુજરાતનો વિકાસનું મોડેલ સમગ્ર દેશ અને દુનિયા સમક્ષ મૂકનાર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જો દેશના વડાપ્રધાન બને તો જ દેશનું કલ્યાણ થશે. અને એના શાસનમાં 8 વર્ષમાં જે દેશમાં વિકાસ થયો છે, રાષ્ટ્રહિતના નિર્ણયો થયા છે, ગુજરાતમાં 20 વર્ષથી ભાજપની 25 વર્ષથી સરકાર છે, આ બધી જ વાત કરવા જાઉં તો ખૂબ સમય થાય. પરંતુ એક વાત હું અહીં એટલા માટે યાદ કરાવું કે દેશમાં 370 ની કલમ હતી, જમ્મુ કાશ્મીર માટે 35 ની કલમ હતી અને 35 અને 70 ની કલમ જેના રાજ્યમાં હતી એવા પરમ આદરણીય કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય जितेंद्रसिंह અહીં છે. ત્યારે मैं इनको निवेदन करता हूं कि सर आज आप जे.एन.के में जब 370 हटा, 35 से हटा, इसके पहले जम्मू कश्मीर में क्या था और आज हटने के बाद जे.एन.के में क्या फर्क है वो आप अपने मुख से बताएंगे, हमारे इन क्षेत्र के जनवासियों को बताएंगे तो हमें भी आपके साथ गौरव महसूस होगा कि प्रधानमंत्री है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो 370 और ये 35 की कलम जो भारत को जम्मू कश्मीर से अलग होने का महसूस करती थी, उनमें और आज में क्या फर्क? भारत माता की। हमारे बीच बैठे हुए आपके थोड़ा सा लोकप्रिय नेता, सांसद, हमारे बड़े ही प्रिय मित्र और कई वर्षों से लोकसभा में हमारे साथ, बल्कि जब मैं प्रवेश करता और मुझे अभी अर्जुन सिंह जी पूछ रहे थे कि आपने इनको पता था कि आप आ रहे हैं, मैंने कहा आना क्या, उन्होंने मुझे कल चेतावनी दे दी थी कल आप प्रवेश करेंगे 4:30 बजे, तो पूरी तैयारी के साथ आइए. तो उस प्रकार का इनके साथ संबंध है. भाई अर्जुन जी की आपने बात सुनी, हमारे साथ अमित भाई सुबह से हैं और जैसे देवी सिंह जी कह रहे थे अब तो एक एक दिन की यात्रा निभा रहे हैं, ये यात्राओं पर यात्राएं करे जा रहे हैं और ये यात्रा करवाने वालों में से तो इनका भी अभिनंदन है, क्योंकि हमारे संगठन में इस प्रकार की कार्य पद्धति रहती है, सभी कार्यकर्ता समझ के अपने आप काम करते हैं. हमारे बाकी वरिष्ठ नेतागण और भारी संख्या में मातृशक्ति युवा मोर्चा, सबसे पहले तो जैसे अभी आपको देवी सिंह जी कह रहे थे कि गौरव यात्रा, और गौरव यात्रा क्यों और गुजरात गौरव का क्या परिभाषा, क्या इसका अभिप्राय क्या है? तो मैं समझता हूं कि देश में किसी भी और राज्य में, किसी भी और प्रदेश में और इससे अधिक उपयुक्त या उचित क्षेत्र नहीं हो सकता था गौरव यात्रा का कार्य.
और ये गौरव सिर्फ गुजरात का नहीं है, गुजरात में ये यात्रा निकल रही है इसलिए इसका नाम गुजरात गौरव यात्रा है। गौरव हम पूरे देश का मना रहे हैं, उस देश का जिसके मुखिया नरेंद्र भाई मोदी, और ऐसा मुखिया जो आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी है। तो क्या इससे बड़ी कोई गौरव की बात हो सकती है? गुजरात से बाकी प्रदेशों ने सीखा कि किस प्रकार से 100% घरों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। तो 2006 में ही मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचा दी थी 9 देहातों में। बाकी प्रदेशों में प्रयास हो रहा है किस प्रकार एक बिगड़ी हुई नदी का सुंदरीकरण करके उसका एक उदाहरण मॉडल देश के आगे स्थापित किया जाए। ये नर्मदा के माध्यम से मोदी जी ने दम करके दिखाया। बाकी प्रदेश है उसका भी सर्व कर रहे हैं। किस तरह से हम अपने पूर्वजों को मान सम्मान दे सकते हैं, वो सरदार पटेल की 180 से ऊंची मीटर प्रतिमा बना करके मोदी जी ने सिखाया। और ये किसी की मांग नहीं थी, हमारी कल्पना से भाग था। और कई वर्षों के बाद एक ऐसा नेता मिलता है और ये एक नई कार्य पद्धति, एक नई कार्य शैली, एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने का काम मोदी जी ने किया। कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में ये सब कुछ होगा। तो यदि ये मॉडल नहीं है विकास का तो और क्या है? और ये बात हम केवल इसलिए नहीं कह रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कहने में हमें गर्व तो है ही है, लेकिन इसलिए भी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, विचारधारा कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, सोच कोई भी हो, किसी के साथ भी क्यों न जुड़े हो, उनसे अगर पूछा जाए कि भले आप का झुकाव किसी और दल के भी प्रति है तो आप बताएं इससे बेहतर और विकल्प क्या है? अगर मोदी मॉडल से बेहतर विकल्प है तो हमें बताएं, हम तो उसको भी सीखने को तैयार, लेकिन है नहीं। अगर नहीं है तो क्या आपका ये दायित्व नहीं कि आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में मोदी जी का साथ दें? भले आपकी राजनीतिक झुकाव कांग्रेस के प्रति है, झाड़ू के प्रति है, जहां भी है। ये जो गौरव यात्रा है एक बहुत बड़ा एक अभियान, केवल जमीनी स्तर का या केवल राजनीतिक नहीं, एक बौद्धिक अभियान है उपलब्ध। तो ये गौरव आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। कश्मीर से लेकर के केरल तक जब भी बात होती है, जम्मू कश्मीर की बात होती है। एक बार जब सरकार नहीं थी तो मैं प्रशिक्षण वर्ग के लिए त्रिवेंद्रम गया हुआ था, कोचिन। तो वहां पर सभा थी हमारे नगर निगम के सदस्यों की। तो वो उठे तो लगे कुछ बात करने किसी विषय पर। तो मैंने संगठन मंत्री जी से कहा कि ये कोई यहाँ तो स्थानीय विषय ले लेते तो अच्छा होता, हमें भी उसका पता होगा। बोले वो इनके लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप इन्हें कहेंगे कश्मीर पर भाषण देना 370 को दे देंगे। यानी भारतीय जनता के प्रत्येक कार्यकर्ता का फेवरेट टॉपिक जो कंठस्थ था, उसको सोए भी वो भाषण देने को तैयार था, वो है 370 और कश्मीर, चाहे वो केरल में बैठा था। वो इसलिए, और दूसरे दल हमारा मजाक उड़ाते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो क्या, तो उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें मालूम है ये लिख देंगे 370 हटाना, हर बार यही लिखते हैं, जब सत्ता में आते भूल जाते हैं। उस बात का प्रायश्चित मोदी जी ने कर दिया। जो कहा जाता था असंभव है, जो कभी होगा नहीं। और फिर क्या क्या बातें कही इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस के नेता। किसी ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी, किसी ने कहा यहां कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन आज देखिए क्या हुआ। मैं उस दिन आंकड़ों सहित किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा 5 और 6 अगस्त 2019 को 370 हटाने का काम हुआ। उसके अगले 6 महीने में 4 बड़े बड़े प्रमुख त्योहार हुए। विजयदशमी का त्योहार हुआ, दीपावली का हुआ, वहां दूसरे समुदाय में ईद मुहर्रम हुआ। कोई भी दुखद घटना नहीं हुई। और उससे पहले क्या होगा, कोई भी त्योहार हो तो कोई ना कोई आतिशबाजी जरूर होगी, कोई हिंसा हो जाएगी, कोई गोलीबारी होगी। तो 370 के हटाने के ऊपर जो लोग इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते थे, उसके विपरीत
माहौल ठीक होने का काम हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे जो चाहते थे कि माहौल बिगड़ा रहे, आतंक बना रहे, पुष्ट दर पुष्ट उनका वंशवाद चलता रहे, 10% मतदान होता रहे, वो बार बार सांसद विधायक बनते रहे, बार बार सरकारें बनाते रहे। और मैंने उसमें संसद में कहा कि काश किसी को ये प्रस्ताव आए कि न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए वोट की, तो 20-25 लाख का अगर एक चुनावी क्षेत्र में लोकसभा का तो मात्र 10% से सांसद बन जाती थी। क्या होता था जब भी कोई बड़ा नेता केंद्र से कश्मीर जाता तो पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान हुआ कुछ। आज दुकानों के बाहर लोग फूल लेकर के खड़े हैं हमारे नेताओं के दर्शन करने के लिए, प्रधानमंत्री के दर्शन करने के लिए, गृह मंत्री। और वो इसलिए कि प्रधान पहले मैं आपको जिम्मेवारी के साथ आंकड़ों से ही बता सकता हूं कि कोई ऐसे 3 महीने नहीं गुजरे जब मोदी जी या पूर्वोत्तर या जम्मू कश्मीर ना गए हों, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते समय कहा था कि मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि देश के वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या उनको उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जिस तरह के वो हकदार थे, उनको विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाया जाए। और बड़ी एक सुंदर बात कही थी कि भारत माता का समूचा विकास तभी संभव है जब दोनों भुजाएं एक समान बलवान हो। तक ही सीमित नहीं रखेंगे। देवू सिंह जी अभी 4 दिन बाद मेरे चुनावी क्षेत्र में जाने वाले हैं उधमपुर में, वहां पर इसी गौरव का गुणगान मैं उनके मुख से करवाऊंगा। इस कार्य के साथ आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई है वो 3 पार्टियों के बीच में, क्या कहेंगे सर? नहीं, यदि आप मुझसे पूछें तो मैं संक्षेप में कहूँगा कि ऐसी कोई लड़ाई है ही नहीं, बल्कि जहाँ भी देखो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर आज ये गौरव यात्रा निकल रही है तो किसी चुनावी दृष्टि से नहीं निकल रही, क्योंकि हम लोगों ने मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व की सरकार होगी। मोदी जी ने जो विकास का मॉडल विकसित करके गुजरात में देश भर में उदाहरण स्थापित किया है, उसी को आगे भी बढ़ाना है और ये कंटिन्यूटी का मतदान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, परंपरा है, उसके तहत समय समय पर इस तरह से जनसंपर्क अभियान किए जाते हैं ताकि हमें भी एहसास हो, हम पुनः अपने आप को समर्पित कर सके उन संकल्पों के प्रति, उन आदर्शों के प्रति जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता में जाती है सदा, और जिसके चलते मोदी जी ने गुजरात को बाकी प्रदेशों के लिए एक उदाहरण के तौर पर मॉडल के रूप में स्थापित किया है। गांव-गांव जाकर के उन लोगों को भी समझाया जाए जो शायद अभी उस तरह से पूरा समझ नहीं पाए कि ये कितने बड़े गौरव की बात है कि इसी धरती से विश्व का, मैं देश का नहीं कह रहा, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ने जन्म लिया। सर बार बार गुजरात में केजरीवाल आ रहे हैं और गारंटियां दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो इसलिए गारंटियां दे रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि उनको सत्ता में नहीं आना। जिसको सत्ता में नहीं आना है कोई भी गारंटी दे सकता है। अगर हमें मुझे मालूम है कि मैंने चुनाव तो जीतना नहीं है, ना मैंने मुख्यमंत्री बनना है, ना मेरे ऊपर सरकार की जिम्मेवारी है, तो मैं दब के झूठ बोल दूं। सर मुफ्त बिजली और मैं ये कह दूंगा कि हर आदमी को मैं 1-1 लाख रुपया मुआवजा प्रतिदिन दे दूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है? जब बनेंगे तो तभी देना है ना, जब बनना ही नहीं तो। ये जो इस प्रकार का झूठ बोलता जा रहा है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मेरे आपसे निवेदन है पत्रकार मित्रों से, आप बड़े अच्छे विश्लेषक होते हैं, इसका एक ये अर्थ है कि वो जानते हैं कि वो सत्ता में नहीं आने वाले। अगर वो सत्ता में आने वाले होते तो प्रैक्टिकली होने वाली बातों का मैनिफेस्टो बनाते। सर 370 वाला मुद्दा इस चुनाव में कितना काम आएगा गुजरात के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि 370 को लेकर के लोगों ने जिस प्रकार से उसका अभिनंदन किया है देश भर में, कश्मीर से लेकर के केरल तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, वो सबके आगे कोई छिपी हुई बात नहीं है। और ये एक ऐसा कार्य है कि दुनिया मानती है कि सिवाय मोदी जी के कोई कर नहीं सकता था, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और इससे जम्मू कश्मीर में न केवल विकास और प्रशासन या सुशासन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है, बल्कि वहाँ के लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाने का कार्य हुआ है। गौरव यात्रा को कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अधिक। आप यहाँ देख रहे हैं लोग कितना गौरवमय महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा उत्साह, इतने घंटे तक इंतजार करना, और एक दिन में 5-5 सभाओं का होना और साथ साथ अभिनंदन कार्यक्रमों का होना। मुझे लगता है कि पत्रकार कभी विश्लेषण करेंगे इस देश की राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार की पद्धति किसी और दल में नहीं है। सर अभी जो केजरीवाल जी वो अभी महंगाई के मुद्दे पे बहुत अभी फ्री की गारंटी और ये सब दे रहे हैं,
महंगाई पे आप क्या कहना उनसे आपने ये सवाल करना चाहिए कि आपने दिल्ली में महंगाई कितनी कम कर दी, जितनी कम कर दी है उतनी कर दो, यहाँ पे तो वही बहुत है, वहाँ पे तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में या उनसे पूछ लीजिए कि पंजाब में आपने क्या हाल किया, वहाँ महंगाई तो कम होने से रही बल्कि ड्रग्स का आगमन हो गया, नशाबंदी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होने वाले हैं सर? नहीं देखिए, उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हो, तो चुनाव की आयोग इस बात का फैसला करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और वो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन हाँ, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 पार्टी, हमें कभी भी आप कह दीजिए कोई भी चुनाव, पंचायत का चुनाव, निगम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, संसद का चुनाव, हमारा कार्यकर्ता सोए हुए भी उठ करके चुनाव के लिए तैयार है। चला निर्माण न्यूज में जय जय हो। अपना मलकनी बात के न्यारी हाल रहे सदा लगनारी, अपना मलकनी बात के न्यारी हाल रहे